Hello, good morning students. Welcome to Rashtriya classes. In our previous video, I have discussed about 5 kingdom classifications. What are that 5 kingdoms? First is the Monera kingdom, second Protista, third Fungi, fourth Plantia kingdom, and fifth is Animalia kingdoms. I have already discussed about Monera, Protista, and Fungi. Today we will discuss Plantia kingdoms and Animalia kingdom. So let's start the kingdom Plantia. The kingdom Plantia is mainly divided into 5 subgroups. First is the Thallophyta, first is Thallophyta, second Bryophyta, third Pteridophyta, fourth Gymnosperm, and fifth is the Angiosperms. So let's discuss one by one. First is Thallophyta. The plants in these groups are not having well developed root stem and the roots. Plant in this group are commonly called the algae. The plant that come in these groups are mostly aquatics. मीन्स जो भी थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर जो भी प्लांट्स आते हैं दे आर मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर. मीन्स दे आर फाउंड इन द वाटर. एग्जाम्पल क्लैडोफोरा, स्पायरोगायरा एंड द चारा. दीज आर द एग्जाम्पल. दैट इज द चारा, सेकेंड क्लैडोफोरा एंड थर्ड इज द स्पायरोगायरा. स्ट्रक्चर ऑफ स्पायरोगायरा, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन थैलोफाइटा ग्रुप. Second, we discuss that is Bryophyta. The Bryophyta is also known as the amphibian of the plant kingdom. Why they are known as amphibian? Because such type of plant are found in water as well as on the lands. That is why they are known as the amphibian of the plant kingdom. So the plant that included in this group having stem and leaves, not develop the roots. So but not having special tissue for the conduction of water and the other substances. Example है Markensia and Funarias. Third is the Pteridophyta. Pteridophyta in these groups plants having differentiated into root, stem and the leaves and have special tissue for the conduction of water and mineral. Special tissue means such as vascular tissue such as xylem and phloems. And examples are fern and marcellus. Next is the जो fourth category है that is gymnosperms. अब तक हमने बात करी 3 टाइप के क्लासेस हैं. कौन कौन सी? थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा. बट in first case in Thallophyta not well differentiated bodies, root, stem and leaves. In second case that is stem and leaves are developed but not root and no vascular system. If we talk about third Pteridophyta, the body is differentiated into root, stem and leaves. So but all these three are not having seed. The plant in that include in these 3 categories are not having seeds and no reproductive organs. They are reproduced mainly by the spore formations. So the plant that having no seed and flower, they are known as the cryptogams. So we can say that the Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta groups are included in the cryptogams. Second, these 3 groups kingdoms of Plantia have no seeds and these are known as the Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. Now the plant with well differentiated reproductive. अब हमने बात करी कि जो थैलोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है और ब्रायोफाइटा, इन तीनों में क्या है? सीड्स नहीं बनते हैं. अब बात करेंगे कि जो कुछ एक प्लांट जिसमें सीड बनेंगे. अब सीड ऑन द बेसिस ऑफ सीड एंड द रिप्रोडक्टिव टिश्यू, the plant with well differentiated reproductive tissue and form the seeds are known as the phanerogams. उनको हम क्या बोलेंगे? phanerogams. और जिसमें सीड नहीं बनते हैं that are included in the cryptogams. They are classified into 2 types. The phanerogams are of 2 types on the basis of that the seed are naked or seed are enclosed in a fruit. Means फिनेरोगैम आगे 2 टाइप्स के हैं.
कौन कौन से, एक है जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म। किस तरह से इनको क्लासीफाई किया गया कि जिनके सीड क्या है, नेक्ड है, वो जिम्नोस्पर्म कैटेगरी में आते हैं, और जिनके जो सीड हैं वो इनसाइड द फ्रूट के अंदर होंगे, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में। Now, what are the main characteristics of the gymnosperm? The plant of this group bearing the naked seed and are usually perennials. Perennials and woody stems. Perennials means they plant having long lifetimes. Example pine, देवदार and cycas. नेक्स्ट आता है हमारे पास एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म वी कैन से दैट दे आर सो नोन एज द फ्लावरिंग प्लांट. एंजियोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट. सो द प्लांट इन दिस ग्रुप बियर द सीड बट एनक्लोज्ड इन द फ्रूट. कि इसमें जो सीड तो होते हैं बट वो किसके अंदर मिलेंगे आपको, विद इन द फ्रूट के अंदर जो सीड मिलते हैं वो कौन सी कैटेगरीज में आते हैं, वो प्लांट that are in the angiosperm category. They are also known as the flowering plant. Now this angiosperm again divided into two, that is one is monocot and second is the dicot. Monocot means having single cotyledons and dicot means having two cotyledons. Now what is this cotyledons? Cotyledons are called seed leaves. जब सीड ग्रो करता है तो उसकी हल्की सी एक लीव्स अराइज होती है, उसको हम बोलते हैं कोटिलिडन्स. दैट वी कैन से दैट द मोनोकॉट हैविंग सिंगल cotyledons and the dicot having two cotyledons. The angiosperms are divided into two groups, that is monocot and dicot. डाइकॉट का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मोस्टली पल्सेस हैं, ग्रैंड्स हैं, जिसमें सीड क्या है, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं हम डाइकॉट. और मोनोकॉट जिसमें सीड को इक्वल डिवीजन नहीं हो पाता है, जैसे आपके पास मस्टर्ड है या बाजरा है, दैट आर इन मोनोकोटिलिडन्स. Next we will talk about the kingdom Animalia. Now this Animalia kingdom are divided firstly on the cellular level of organization and second is the tissue level of organizations. This is the cellular level of organization and second is the tissue level of organization. On the basis of cellular level of organization, first group is Poriferas. पॉरीफेरस, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉरीफेरस एनिमल्स में. तो जो पॉरीफेरा, वर्ड पॉरीफेरा मीन्स हैविंग होल्स. द एनिमल्स दैट इंक्लूड इन दिस कैटेगरीज आर नॉन मोटाइल इन नेचर. नॉन मोटाइल में दे कैन नॉट मूव एंड दे आर अटैच्ड टू सम सॉलिड स्पोर्ट्स. कुछ एक सॉलिड स्पोर्ट होगी जिसके साथ वो अटैच्ड होते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास आ गया साइकॉन्स एंड स्पॉन्जिलास. एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वन टर्म इज कम हेयर, दैट इज सीलोम्स. नाउ व्हाट इज दिस सीलोम? द सीलोम इज द बॉडी कैविटी. Body cavity. On the basis of coeloms, they are further divided into three types. First is ecoelomate, second pseudocoelomate and third is the eucoelomate. एसिलोमेट मीन्स विदाउट सीलोम्स, जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होगी, ऐसे एनिमल्स जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होगी. और सीडोसीलोम मीन्स हैविंग फॉल्स सीलोम, फॉल्स बॉडी कैविटी. एंड यूसीलोम मीन्स ट्रू सीलोम, जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी. तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज एसिलोमेट. एसिलोमेट में हमारे पास आते हैं प्लैटीहेलमिन्थस एंड सिलेंट्रेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिलेंट्रेट है उसके क्या क्या फीचर्स हैं? दीज आर एनिमल लिविंग इन द वाटर्स. These animals live in the water. Their body design get different from that of the poriferas. The body is made up of the two layers. इसकी जो सिलेंट्रेट्स हैं इनमें जो बॉडी है उसकी दो लेयर्स होते हैं, एक इंटरनल लेयर होती है और एक आउटर लेयर होती है. जो इंटरनल लेयर होती है वो किसके लिए,
फॉर द सिस्टम, जो ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उसके लिए वो इंटरनल लेयर प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रा, जेलीफिश एंड सी एनिमोन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द coelentrates. Second is the platyhelminthes. They are not having the coelom, not having body cavities. The animal in this group is more complex design as compared to that of porifera and the coelentrata, and having bilateral symmetry. जो एनिमल इस कैटेगरी में आते हैं इन प्लेटीहेलमिन्थेसिस में, तो उनमें क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री मीन्स दे आर इक्वली डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, right and left halves, you can say that two half bilateral, the body is divided into bilateral symmetries. नेक्स्ट हम बात करते हैं सीडोसीलोमेट. सीडोसीलोमेट मीन्स इसमें हमारे पास आता है नीमेटोड्स, and third is the nematodes. Nematodes, they are also having the bilateral symmetry. The animal body is having the bilateral symmetries, and the example of the nematodes are the ascaris, roundworms, pine bones. They are the example of the nematode. Next हम बात करते हैं ट्रूसिलोम्स, जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है. तो ट्रूसिलोम की अगर हम बात करते हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज सीलोम फॉर्म फ्रॉम पाउचेस, की एक सीलोम क्या होगा, पाउचेस में प्रेजेंट होगा, जो बॉडी कैविटीज है वो पाउचेस से अराइज होती है. और सेकंड है हीमोसील्स. हीमोसील्स मीन्स जो बॉडी कैविटी है उसमें ब्लड भरा होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ हीमोसील्स दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री सब ग्रुप्स, दैट इज एनिलिडा, arthropoda and mollusca. What are the specific features of these three? First of all, bilateral symmetry in annelida, arthropoda and mollusca. Second, triploblastic in natures, open circulatory system in arthropoda, एंड सिलोमेटिक कैविटी इसमें क्या होगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, खत्म होना शुरू हो जाती है इन केस ऑफ मोलस्का. नेक्स्ट आता है द ट्रू बॉडी कैविटी, द वेराइटी ऑफ हैबिटेट means annelida animals, they are found in the variety of habitats, such in the lands or on the waters, anywhere, such as earthworms and leeches. They are come in category of annelidas. Second आता है arthropoda. Arthropoda, this is the largest group of the kingdom Animalia. इसमें हमारे पास आते हैं कॉकरोच हैं, प्राण जिसको हम कहते हैं, बटरफ्लाई, स्पाइडर, स्कॉर्पियो एटसेट्रा. दे आर कम इन आर्थ्रोपोडा ग्रुप्स. नेक्स्ट आता है हमारे पास मोलस्का, हैविंग द बाइलेटरल सिमेट्री. व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स, एग्जांपल्स क्या क्या होंगे इसके पास, हमारे पास स्नेल्स, मसल्स, ऑक्टोपस, दे आर द in mollusca group. Next, having coelom in pouches, they are again further divided into two categories. One is notochord, no notochord. Notochord means vertebral column जिसमें present होता है और जिसमें vertebral column present नहीं होगा. आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, वन बाय वन सभी में एक एक फीचर आगे बढ़ता जा रहा है. अब यहाँ तक जो हमारे आगे मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, नीमेटोड्स, प्लेटीहेलमिन्थेस, सिलेंट्रेट्स एंड पोरिफेरा, दे आर नॉट हैविंग द नोटोकॉर्ड. इनमें जो वर्टिब्रल कॉलम्स है वो प्रेजेंट नहीं है. अब बात करेंगे कि एक में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, एक में वर्टिब्रल कॉलम अब्सेंट है. तो वर्टिब्रल कॉलम जिसमें अब्सेंट है, नोट having notochords, that is the echinodermata. Now having notochord and having no notochord is present. अब अगर हम बात करते हैं जिसमें notochord absent है, that is echinodermata. Now what are the special features in these animals? These animal are spiny skinned organism. इनमें जो स्किन होती है वो स्पाइन, कांटे होते हैं उसमें छोटे छोटे, ठीक है. सेकंड क्या फीचर है कि इसका जो सेल होती है, आउटर कवरिंग होती है, दैट इज हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स दैट आर यूज्ड एज ए स्केलेटन, जिसको वो यूज करते हैं. एग्जांपल हमारे पास आता है स्टारफिश, सी अर्चिन्स, एंटीडोन्स, दे आर द एग्जांपल ऑफ इकाइनोडर्मेट्स.
Now next is the chordate. Chordate में you can say that vertebrate. Chordate में अब हमारे पास आते हैं vertebrate में 5 सब क्लासेस हैं आगे. कौन कौन सी है? पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमलिया. अब इनके क्या क्या फीचर्स हैं? पाइसिस में जो भी एनिमल्स हैं, द मोस्टली एनिमल आर मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर्स. And what is the special features? That is the animal in this category is having two-chambered heart. Heart is two-chambered and they are the cold-blooded animal. Now what is this term meaning of the term cold-blooded? मीन्स ऐसे एनिमल जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं विद इन अकॉर्डेंस विद द इन्वायरमेंट, उनको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड. और वार्म ब्लडेड वो ऑर्गेनिज्म हो गए जो अपने बॉडी टेम्परेचर को, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं इन्वायरमेंट के साथ. तो पाइसिस में हमारे पास क्या आ गए? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं. मीन्स दे कैन नॉट मेंटेन देयर. जो पाइसिस है उसमें जो एनिमल्स हैं मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर हैं और जो उनकी स्किन है दैट आर कवर्ड विद द स्केल्स. जैसे आपने फिश देखी होगी तो उसमें क्या है, जो स्केल्स होते हैं छोटे छोटे, तो कवर्ड विद द स्केल्स. टू चैम्बर्ड हार्ट होगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं. और जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज द गिल्स इन केस ऑफ पाइसिस. अगर हम बात करते हैं एम्फीबिया की, तो एम्फीबिया में क्या है? थ्री चैम्बर्ड हार्ट. हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से हैं? दे कैन रेस्पायर आइदर थ्रू द गिल्स और थ्रू द लंग्स. दे ले द एग, वो एग प्रोड्यूस करते हैं. ओविपेरस इन नेचर्स. Pisces are also oviparous in nature, but they lay egg in water as well as outside the waters. Third group is the reptilia. Reptilia means जो रेंकर्स है मोस्टली दे आर फोर चैम्बर्ड हार्ट. हार्ट कितना है, कैसा है? फोर चैम्बर्ड हार्ट है. दे आर नॉट, दे आल्सो हैविंग द स्केल्स. अगर हम बात करते हैं स्नेक को, तो स्नेक किस कैटेगरी में आएगा? रेप्टिलिया में. एंड दे ब्रीथ थ्रू द लंग्स. दे आल्सो आर द ओविपेरस इन नेचर. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एव्स एंड मैमलिया. एव्स में मोस्टली बर्ड आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरीज एंड हार्ट इज फोर चैम्बर्ड. दे आर ब्रीथ थ्रू द लंग्स. ब्रीथिंग ऑर्गन क्या है? लंग्स. एग्जाम्पल आपके पास जो भी बर्ड्स आते हैं वो सारे एव्स में आते हैं. जैसे क्रू है, पिजन है, स्पैरो है, ऑस्ट्रिच है, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन एव्स. नेक्स्ट आता है एंड दैट इज द लास्ट वन, दैट इज मैमलिया. मैमलिया में व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स? हार्ट इज फोर चैम्बर्ड, वार्म ब्लडेड. They are the warm blooded means they can maintain their body temperature with the environments and are viviparous in nature. Skin having, जो स्किन है उसमें क्या है? हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर है एंड स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है, मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट है. और एग्जांपल हम किसका दे सकते हैं? व्हेल हो गया, रैट है, बैट और ह्यूमन बींग्स, दे आर इन द मैमलिया ग्रुप्स. अब व्हेल, हम कहते हैं कि व्हेल तो मैमलिया ग्रुप में क्यों इंक्लूड किया गया? ये पाइसिस ग्रुप में क्यों नहीं है? दे हैव नॉट द फीचर्स. दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर फोर चैम्बर्ड हार्ट, मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट and they respire through the lungs. That is why they are included in mammalia group. That's all about this topic. I will provide you some assignment questions. Do that assignment questions on your fear notebook.